हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने लेसन 13 व्हाई डू वी फॉल इल को डिस्कस करेंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम इसको इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं अपने आसपास कि जो भी हेल्दी लोग हैं दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना। So what is the reason? There are two main reasons for spreading of this COVID, that is the weak immunity and carelessness. That means we are not using sanitizer, we are not putting our mask. So that is carelessness, and weak immunity causes the spreading of COVID. And World Health Organization says what is health? Health is a state of being well enough to function well physically, mentally, and socially. So health cannot be achieved only by the individual, as it depends on its surroundings and environment also. So it is our social responsibility to maintain cleanliness, hygiene, and to prevent spreading of diseases like corona. So these precautions are to be taken. So first, what is mental health? So mental health is when a person is not under any kind of psychological stress or tension. That means if a person is in tension, means he or she is not mentally fit. And physical fitness means a person is active and is disease free and doing some physical fitness exercises to keep herself or himself physically fit. And social fitness means a person is able to communicate and socialize well to fulfill his requirements. That means he is communicating everybody. So that is the social fitness. Now, conditions for good health. What are the conditions for good health? As we are seeing the first point, healthy and balanced diet. So we should take care of the balanced diet. And personal and social hygiene, that means we should keep our body clean and our social environment clean. And active lifestyle means regular exercise and health conscious attitude. So we should take care to keep ourselves healthy by doing exercises regularly. So physical fitness. Good physical and social environment includes clean surroundings, good sanitation, proper garbage disposal, and clean drinking water, and good economic condition for provision of good food. So these are the conditions for good health. And significance of health means it increases our working efficiency and help us to perform various activities at our best. That means if we are physically and mentally fit, so our working efficiency increases, and when it increases, so it helps us to cope up with social and mental pressure without any difficulty. And so when there is no social and mental pressure, our life is joyful, and only a healthy individual can be happy and contribute to a society. So we need good health not only for ourselves but for our society also, and that is only possible by keeping oneself physically and mentally fit. Now, a difference between healthy and being a disease free. Now, what is the difference between being healthy and a disease free? This is also the answer of our second question. So, being healthy means it is a state of being well enough to function well physically, mentally, and socially, and disease free means the body is free from diseases. Being healthy refers to the individual for physical and social environment, and it refers only to a particular individual. And the third point is that the individual has good health, energetic, and being disease free means individual have a good health or poor health, means there are no diseases in his or her body. So this is the answer of our second question also. Now first question is the what is health and what is its significance? So as we are seeing the 3 points, significance, as we have already discussed, that
It increases our work efficiency, cope up with social and mental pressure, making us joyful. So these are the significance. And what is health? So as we have just seen the definition, that it is the state of being well enough to function well physically, mentally, and socially. Now, second answer we have already discussed. Third, are there any more requirements for a good health apart from above? Think and write. So we can also write that physical fitness. So all these physical fitness makes or gives us a good health, and which in turns makes us more energetic, more joyful. We are more happy. So and more you can think over it, and you can write more points according to your thought process. Now, fourth question, so what do you mean by mental, social, and emotional aspects of health? Explain. So mental means one should be physically, as we are physically fit, so mentally, if there is no stress, no tension, means a person is mentally fit. Social means a person able to interact or move in society, talks with everybody, and keeps her or his surroundings clean. And emotional aspects of health means he is well aware of the emotions of herself and others. So these are the four questions. Now let us discuss this topic in Hindi also. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि इस समय जो है कोरोना वायरस हमारे आसपास के वातावरण और पूरे संसार में जो लोग हैं वो इस वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हम बीमार क्यों होते हैं और स्वास्थ्य क्या है और इसका क्या महत्व है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास ये जो कोविड-19 फैल रहा है, इसका दो मुख्य कारण है। एक है कम रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूसरी लापरवाही। तो लापरवाही हम क्या बरत रहे हैं? हम मास्क का यूज़ नहीं कर रहे, हम सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर रहे, हम जहाँ भी है अपने हाथ लगाते हैं उसके बाद उसको वॉश नहीं कर रहे। सो ये कुछ कारण है या लापरवाही है जिनका हमें ध्यान रखना है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वह व्यक्ति अगर अच्छा है तो उसको हम कह रहे हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। और स्वस्थ जो है वह केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं और हमें अपनी आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ अपने आसपास की भी सफाई रखें और इस कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकें। तो यह हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। अब स्वास्थ्य क्या है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक यानी कि अगर आप मानसिक रूप से किसी भी तनाव से मुक्त हैं तो यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। शारीरिक स्वस्थ मीन्स आप पूरी तरह से शरीर से स्वस्थ हैं और सक्रिय हैं। और थर्ड है हमारा सामाजिक स्वस्थता, मीन्स कि हम अपनी या कोई भी व्यक्ति जो है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम आसपास के अपने लोगों के साथ मेलजोल और संवाद रखते हैं। जैसे आप भी अपने नेबर्स के साथ अपनी बातचीत और सब रखते हैं, यानी कि हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं कि हम एक दूसरे के सुख और दुख में साझेदारी करते हैं या निभाते हैं। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं क्या क्या हैं कि एक तो जो है संतुलित आहार आवश्यक है। अगर हमारा आहार संतुलित है तो वह काफ़ी हद तक हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और हम अपने शरीर के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखें और अपने जीवन शैली में नियमित व्यायाम, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखें। और शारीरिक और सामाजिक वातावरण में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। आसपास जो है कचरा ना फैले, उसका कचरा प्रबंधन कर सकते हैं कि कचरे को हमें डस्टबिन में ही फेंकना है, इधर उधर नहीं फैलाना। और अपने जो है स्वस्थ जल यानी कि जो जलाशय वगैरह हैं उसके आसपास भी हम ध्यान रखें कि उसके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहे। तो ये कुछ आवश्यकताएं हैं जिनका कि हमें विशेष ध्यान रखना है। और अच्छे भोजन के लिए
क्या जरूरी है? आर्थिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी है। अब अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है कि हमारी अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, और कार्य क्षमता बढ़ती है तो ये हमें कोई भी गतिविधि को मदद करने में, गतिविधि अगर हम कुछ भी करते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारा जो है ऊर्जा का स्तर ज्यादा है तो हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपकी कार्य क्षमता बढ़ रही है तो हमारा जीवन कैसा है? आनंदमय है, हम खुश हैं, और एक व्यक्ति अगर खुश है तो वह समाज में भी अपना योगदान अच्छे से दे सकता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने लिए ही नहीं बल्कि हमें समाज और देश का भी जो है हित के बारे में हमें सोचना चाहिए। अब इसमें एक टॉपिक और है हमारा, रोग मुक्त होना और स्वस्थ, इसमें क्या अंतर है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है। तो स्वस्थ होना क्या है कि मनुष्य जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर रहा है तो वह स्वस्थ माना जाता है। और रोग मुक्त यानी कि उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति जो है वह भौतिक और सामाजिक वातावरण में जो है उस परिवेश में अच्छे से रहता है, वह अपने और अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहता है, और ऐसे व्यक्ति का हम कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा है। रोग मुक्त व्यक्ति की अगर हम बात कर रहे हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से उस पर्टिकुलर व्यक्ति की ही हम बात कर रहे हैं, और वह जो है उसका शरीर जिसमें कि कोई भी बीमारी ना हो, और इसके साथ साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है और निर्बल भी हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसके शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य क्या है और उसका क्या महत्व है। तो स्वास्थ्य, जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर वह अच्छा है तो उसको हम स्वस्थ कह रहे हैं। और इसका महत्व क्या है कि अगर कोई शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य क्षमता अगर बढ़ गई तो उसकी गतिविधि भी बढ़ती है, और वह सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना आसानी से कर सकता है, उसका जीवन आनंदमय रहता है, वह खुश रहता है। और अगर कोई भी खुश है तो वह अपने आसपास के वातावरण में, अपने समाज में अच्छे से योगदान दे सकता है। सेकेंड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड हमारा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, तो सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, और इसमें जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें पता है कि हमें शारीरिक रूप से हमें फिट रहना है, उसके लिए हम एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ध्यान ये सब कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम अपने शरीर को और जो है अपने मानसिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अब जैसे आप भी इसमें सोचकर और भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, और भी कुछ लगता है आपको इसमें पॉइंट लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो मानसिक रूप से यानी कि मन में अगर कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। सामाजिक रूप से यानी कि अपने आसपास के लोगों के साथ बोलचाल रखना, उनसे बात करना, उनके सुख और दुख में सहयोग करना, तो आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। और भावनात्मक पहलू यानी कि आप भावनात्मक रूप से, जैसा अभी मैंने कहा कि किसी के साथ सुख और दुख में अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हैं तो यानी कि आप भावनात्मक स्तर पर भी अपने आसपास, अपने समाज में अन्य लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।